In the previous section, we did Luscoparthy. This Luscoparthy is one of the compound tenses in French. You understand compound tense, right? Yeah. What is that? Compound. Um, Their formation is compounded, right? yeah. Auxiliary verb and past participle. Yes. Subject and auxiliary verb, I think. If you don't mention subject, that's understood. It's okay. You don't mention subject. उसकी जरूरत भी नहीं. You simply say it's a verb or auxiliary plus past participle, right? That is Yeah. what is the compound tenses are. Basically, main verb का past participle होता है, but the verb is always there as a helping verb. That is what compound Hmm. tense is. Like we already know one of the compound tenses, which is allopathic composure. The other is Lusky pathway, and then another one, the last one is future entity. We will see one, two, three are written on the table. Okay. So the first section is all these are past, compound tenses. One is future compound, another two is past compound. So compound tenses होते हैं, एक रबर का auxiliary होता है. That एक रबर का auxiliary can be in different tense, right? To form passive composite, you take एक रबर of present tense, isn't it? Hmm. So just like that, to form list part with the compound एक रबर, like which एक रबर, like which tense is एक रबर, to form list part. Which form of Etravar? Yeah, which tense का form, like which form of एक रबर we are going to take. Is it present or something else? Should be present. So if I write present, एक रबर का present form and past participle, wouldn't it be passive composition? So how it's different than past and future? Otherwise, in that way, though, these two are same, right? Yeah. So of course, either word should be some other in some other tense. So the past So it participle should is be universal, right? past. Hmm. So that does not change in past composite plus past or future tense. So क्या change हो सकता है? Basically only either word. And either word does change to in other form, which is am parte का either word form. कोई और नॉन कंपाउंड ही होगा ना जिसका एक वर्ड ले सकते हो वेरी लॉजिकल टू थिंक इन दैट वे Hmm. to form any compound you take non-compound state one, isn't it? Okay. So to form passive Hmm. composite you take non-compound tense the phrase का state one. To form list pathway you take am pathway which is non-compound tense, right? Am pathway का conjugation Hmm. देखिए je mange, tu manges, il mange, elle mange, nous mangions, vous mangiez, il mangeait, elle mangeait. We used to eat. You used to eat. They used to eat, right? Hmm. That is what एम्पार्थ is. तो एम्पार्थ का एक वर्ड फॉर्म आपको याद है? Uh, नहीं. एम्पार्थ रिवाइज करो. जिसकी बात Okay. नहीं समझ आया. जैसे मैंने बोला था पासिव कंट्रोल के लिए प्रेजेंट टेंस का एक वर्ड रिवाइज करो. So you don't know how to tell something you are used to do, like you are habitual of. Like you used to read a lot of books uh, when you were 10 or 15 years of age. How would you say that? Um, I used to read books. So just give me 2 minutes. Je, so imparfait of lire. Yes, of course. Je, That's all. yeah, yeah.
लीस्ट R, imperfect. R, Yeah, sure. yeah. Basically, R, R. न्यू का फॉर्म ले लेते हो ना प्रेजेंट का, न्यू फॉर्म उसमें से Hmm. बना देते हो राइट। न्यू फॉर्म क्या होता है ये बता दीजिए बस, पता चल रहा है। Uh, Lisa, Lisa, R, Lisa, the Libra, Libra. लीव इज बेसिकली आर ई एंडिंग वर्ड, ठीक है, थर्ड ग्रुप है। प्रेजेंट टेंस का Yeah. कंजुगेशन क्या होता है, आई रीड क्या होता है, Sorry, I read. Je, je live, je, लीव, je lis. लीव Yeah. नहीं, लीव तो वर्ड है, उसको लीव, Li, एल आई hmm. आर ई में से आर ई को ड्रॉप करोगे, एस ऐड होता है यहाँ पे, थर्ड ग्रुप Yeah, है, je live. ये याद रखना है, Yeah. फिर याद है लीव, एल आई एस एल आई वी। सो यूजुअली Hmm. एक्चुअली, एवी, एलवी, देखो कितना बेसिक था, आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, समझ रहे हो। प्रेजेंट टेंस में थर्ड ग्रुप Hmm. एक पूछ दिया मैंने, लीव, फिनीर, वनीर, डिफिकल्ट हो गया। सिंपल मीनिंग कंजुगेट करना है। कोई नहीं, आप लोग पढ़ो, मैं कंजुगेट कराता हूँ D1 खत्म होने के बाद। बट यू नो ये करना पड़ेगा। प्रेजेंट टेंस में आई रीड भी नहीं समझ आ रहा है कि हाउ टू से दैट, इट सिंपली मीन्स यू डोंट नो हाउ टू कंजुगेट द वर्ब्स, अदरवाइज आपको सब पता है, सब्जेक्ट एंड ऑल वर्ब भी पता है, जस्ट डोंट नो हाउ टू Hmm. कंजुगेट दैट, और इवन यू डोंट रिमेंबर द वर्ब, बिकॉज हियर इट्स नॉट नो हाउ, थर्ड ग्रुप में इट्स नॉट नो हाउ दैट हाउ विल यू डू दैट, इट्स मोर लाइक मेमोरी, इफ यू हैव दैट मेमोरी और नॉट, Hmm. मेमोरी नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम। यहाँ पे रिवाइज करना है, मेमोराइज करना है, ठीक है। ये ऐसा कुछ ई आर एंडिंग रेगुलर वर्ब होता तो आप अभी भी एज्यूम कर लेते, राइट। You guys have to put Hmm. lot of effort, तो ये कुछ भी नहीं, इसके कुछ नहीं। तो जितने भी थर्ड ग्रुप के वर्ब से याद हो जाने चाहिए, चाहे आप किसी भी टीचर के पास जाओगे, कहीं भी जाओगे दुनिया में, कोई भी याद ही करता है, इसका कोई रूल ही नहीं है, तो क्या करोगे आप बताओ, रूल ही नहीं है, देयर इज नो फिक्स रूल एंड रेगुलेशन फॉर थर्ड ग्रुप, Hmm. तो रैंडम है, कुछ भी चेंज हो सकता है ना। तो याद करना बेटर ऑप्शन है, कोई ऑप्शन ही नहीं है ज्यादा करना, ठीक है। जली, इली, इली, एली, लीसो, ओके, नू लीसो। सो लेट्स टेक नू का फॉर्म लीसो, एंड इसमें से ओएनएस को ड्रॉप कर दो, लीस हो जाएगा, एल आई डबल एस। Yeah. स्टार्ट एडिंग दैट एंडिंग्स ऑफ एम्पाथ, एंडिंग्स याद है या वो भी नहीं है, एम्पाथ एंडिंग Imperfect की तो I think अभी लास्ट टू लास्ट क्लास में किया था. क्या Um, है। आपको वैसे यहाँ पे टेक्निक होता तो दिख भी रहा है, जॉब के लिए तो कम से कम दिख रहा है। um, okay, and um, ए आई एस, AIS like should मैं कोई वर्ड के साथ करूँ ये? नहीं नहीं, बस मुझे एंडिंग्स बता दो, जियो के लिए ए आई एस है ना, क्यू के हाँ, लिए, AIS तो के लिए AIS, LLO के लिए AIT, and then uh, कैसे O ONS नो आई ओ के एन लिए एस, ONS, वो के लिए IONS, वो के लिए IEZ, और LL के लिए ENT, ए आई ई एन, AIENT. या तो चाहे तो लिख लो ना, ये सब एक पेज का नोट्स है, एक पेज में सब कंसाइज हो सकता है ना, और बस चिपका दो सामने, ये रहा एंडिंग, जो रोज यूज करना है जैसे एंडिंग, जो हमेशा कुछ बदलता नहीं, तो इसे लिख लो, आई एस, आई एस, ए आई टी, आई एन एस, आई जेड, ए आई टी एन टी, मुझे तो याद ही हो गया, तो Hmm. याद हो ही जाता है, अब बार बार पढ़ोगे एक चीज तो याद ही हो जाएगा, तो वही होता Yeah. है, रिपीट इतना बार कर चुका हूँ कि मुझे याद ही हो, एंडिंग Hmm. कुछ भी सोचना ही नहीं, बट अगर मान लो शुरुआती दिनों में याद नहीं होता, स्ट्रगल करते हैं थोड़ा, तो कोई नहीं, लिख लेते हैं कि अच्छा कभी तो याद हो जाएगा, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते 10 दिन में याद हो जाएगा, 10 डेज अगर रेगुलरली देखते रहो, तो सब क्या है जो नहीं याद होगा, लेटर्स ही तो है, ए आई एस में,
Okay, so to form Hmm. plus parfait, you are going to use M parfait of H का M parfait and avoid M parfait. So H का M parfait, बाकी सबको याद था लास्ट क्लास में सबने बताया था पूरा. I didn't write this. The students told me that this is the form. Past participle of is H, avoid the past participle is O, and that's we conjugated them in lamp parfait, right? Because we need lamp parfait form of the tetragon to form this parfait, right? So, Yeah. j'étais, tu étais, elles, on était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. यही है. Hmm. तो इसमें भी अगर आपको याद नहीं होता कुछ भी तो डोंट वरी, बस ये याद रखो कि ई विदाउट आई एंड टी इज द स्टेप. उसके बाद एन चैट को देखो है ना. Yeah. इसमें भी आप चाहो तो ऐसे लिख सकते थे ए बी याद कर लो. अब वाल का वैसे ये ए बी है ओ आई आर एन कुछ भी याद Hmm. नहीं करना. ए आई एस ए आई AIS, AIS, AIT, IONS, IZ. अब बताओ इससे ज्यादा सिंप्लीफाई क्या ही हो सकता है. आप याद कर लो. ठीक है. Hmm. बार पढ़ चुके हैं. यहाँ पे वही है. AIS, AIS. So anyway, but remember this is irregular verb. Remember, ये सब irregular है. Yeah. फिर भी कोई टेंशन नहीं हो रहा है. आराम से समझ आ रहा है किसी नहीं लगा चाहिए कि है. बट यहाँ पे सिर्कमफ्लेक्स होता है. यहाँ पे ग्राफ है. एक यू है. ठीक है. J'étais, tu étais, il était, elle était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. J'avais, tu avais, il avait, elle avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. ENT नहीं पढ़ते हैं. Yeah. यहाँ तक पढ़ोगे. एते एंड आवे. समझ गए. Hmm. So Okay. if I want to keep एत्र as main verb in my sentence, I had been. तो एत्र के साथ auxiliary क्या यूज होगा एत्र verb के साथ. If A3 is itself is main verb in a sentence, past participle, right? Yeah. तो auxiliary कौन सा होता है. It's just like passive composite, or this is applicable even to all compound tense, either future, anterior. The same idea of gender agreement, or you say it uses of etra word depending on the verb. So etra के लिए आप one verb use होता है. Hmm. Etra. Yeah. ठीक है. Hello. Yes. Yeah. Okay. So j'avais été, tu avais été, il, elle avait été, nous avions été, vous aviez été, il, elles avaient été, ils, elles avaient été. So what does it mean? I had been. ठीक है. पास्ट Okay. में पास्ट का पास्ट है. ठीक है. ओल्डर पास्ट है ये प्रीस्ट पास्ट. ठीक है. वहीं पे अवर का अगर अवर इज मेन वर्ब तो एक ऑक्सिलरी क्या होगा. ऑक्सिलरी फिर भी अवर ही होगा. राइट. Hmm. ये हमने पढ़ा था पास्ट में. सोचने में भी यही चीज एप्लीकेबल Yeah. है. जैसे ये राइट हुआ. यही चीज हुआ है यहाँ भी. ये कहते राइट हुआ. Hmm. ये चीज हमने पास में देखा था. तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. तो इधर मेन वर्ब अववार हो या ये तो दोनों में अववार ही ऑक्सिलरी होता है. ठीक है. Okay. और Yeah, ये सिर्फ पढ़ा डॉक्टर था. मिसेस वैंडरट्रम्प और ऑल प्रोनोमिनल वर्ड्स के साथ यू आर गोइंग टू यूज एथ all the time as a help it without any issue, and also do gender and number agreement according to the subject of the sentence. ये सेम आइडिया आप अप्लाई होता है यहाँ पे. ठीक है. लेट्स कंप्लीट आले इन प्लस के पार्ट में. j'étais allé, Mhm. tu étais allé, il était allé, elle était allée, nous sommes allés, nous étions allés, vous étiez allés, ils étaient allés, elles étaient allées. Ils étaient allés, elles étaient allées. तो Hmm. ये हो गया मेरा एंड परफेक्ट. प्लीज परफेक्ट आले वर्ब एज अ मेन वर्ब. सो ऑक्सिलरी आले में मेन वर्ब है तो ऑक्सिलरी क्या होगा. Sorry.
Ale, if Ale is main verb, auxiliary is going to be F3. F3 is going to ओके। be the main the auxiliary verb with this Ale because अभी हमने बात किया डॉक्टर मिसेस वंडर फ्रॉम ये वाला ये आपको दिख रहा है हुँ, एक इसमें से आले है दूसरा ये आपको दिख रहा है दिस इज अरेटेड आले तो डॉक्टर मिसेस वांड्रम के लिस्ट में है राइट हुँ, तो इसका मतलब एच तो इसको पर्चे के बारे में थोड़ा बता देता हूँ ओके। so structure बहुत simple है it's basically this vertex expresses an action that had already taken place before another past action तो एक पासे कंपोजिशन होता है उसके पहले भी अगर कुछ हुआ है दैट इज कॉल्ड लिस्ट पार्ट यानी कि हैड गोन जैसे जब तक मैं आया आप चले गए तो आप चले गए थे आप मेरे से पहले ही चले गए थे और मैं आया भी था तो ये दो सेंटेंसेस हैं तो यू नो वंस आई अराइव्ड व्हेन आई रीच्ड यू लेफ्ट यू ऑलरेडी हैड लेफ्ट द प्लेस तो इस तरह के एग्जांपल्स हम देखते हैं लिस्ट पार्ट तो जो पुराना एक्शन है द ओल्डेस्ट द फर्स्ट एक्शन दैट टुक प्लेस जो you left the place is basically plushed part and I came later is basically passive composition. So passive composition is newer than plushed part. Plushed part is older and passive ओके। composition is newer. अब देखो कोई भी अगर सिंगल पास्ट एक्शन होगा तो पासिव कंपोजिशन बट दो पास्ट एक्शन एक ही साथ लिखे हो एक पुराना हो एक नया हो तो आप क्या यूज करोगे पासिव कंपोजिशन प्लस प्लस पास्ट ठीक है तो जो सबसे पुराना एक्शन होगा उसमें पुलिस पार्ट का स्ट्रक्चर जो थोड़ा रिसेंट होगा पुराने से नया होगा कंपैरेटिवली दैट वन विल यूजिंग बच्चे कंपनीज यहाँ ओके। तक स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट मेंशन नहीं भी करोगे ऑक्सिलरी एच वर्ड प्लस पास पढ़ेंगे जैसे आपने बता ही दिया था राइट एच वर्ड प्लस पास हुँ, पढ़ेंगे वही है ठीक है हाँ एच वर्ड शुड बी कंजुगेटेड इन लैम्प से ओनली वो भी हमने बात करी है जावे मौजे अबो तो नाती के आई हैड ईटन बिफोर यू अराइवल बिफोर योर अराइवल सो जावे मौजे देखो मौजे के साथ अवर का एम पार्ट एंड पास्ट वी हैव लिस्ट टू पार्ट ओके। इसमें कुछ ज्यादा तो है नहीं कंसर्न सिंपल है डॉक्टर मिसेस वन डॉक्टर लिस्ट हुँ, एग्रीमेंट रूल आपको पहले से पता है एथ इज ऑलवेज जेंडर सेंसिटिव सब्जेक्ट द नंबर इन जेंडर के हिसाब से होगा राइट या ओके ये सब तो हो गया बस यही कुछ इन सिग्नल वर्ड्स हैं जो हमेशा यूज होते हैं जिसके बाद जैसे डेजा हमको आपो लॉस तो होम हमको एक और सीधे कुछ सीधे से हुँ, ओके। तो ये सारे जॉब्स देखते ही आपको पता चल जाएगा कि दिस द पार्ट स्ट्रक्चर अच्छा कंपेयर भी कर सकते हो तीनों पास्ट टेंसेस को ठीक है और यूजेज भी समझ सकते हो डिफरेंशिएट कर सकते हो व्हाट इज व्हाई देयर आर मल्टीपल पास्ट टेंसेस और व्हाट देयर मीनिंग इज टू लाइक आइडेंटिफाई कि पास्ट में कितना पास्ट है लाइक यू सेड कि या प्लस पारफे इज लाइक वो पासे ओल्डर कंपोज से भी पहले था या सो जस्ट टू आइडेंटिफाई द लाइक द गैप्स इन टाइमिंग। हाँ पास्ट कंपोजिट जो है पहले है और एम प्लस के बाद में पुराना है जितना पीछे जाओगे हम्म। प्लस के बाद में मिलेगा और एक बीच में क्या है फ्रीक्वेंसी के यहाँ पर इसका तो पता ही नहीं चलता हम्म। कब स्टार्ट होता है कब खत्म होता है या इसका टाइमलाइन ही क्लियर नहीं होता तो ये बस ऐसे ही खींच लो कहीं पे भी बाकी बट इतना पता है कि ये प्रेजेंट के पहले है ना क्योंकि पास्ट टेंसेस कभी भी प्रेजेंट तक नहीं आ सकते एंड पास्ट पे प्रेजेंट ही होगा अब पास्ट ही होगा राइट कहीं ना कहीं बीच में ही टर्मिनेट हुआ होगा पहले
बट हो सकता है कहीं नजदीक तक आया हो, ये नहीं पता कहाँ तक था, कब स्टार्ट हुआ, एंड स्टार्ट इज नॉट क्लियर विद देम. But anyways, Mhm. we at least know that it was a habitual past repetitive action, right? Yeah. That is what imparfait is. So, j'ai mangé is I eat, j'ai mangé, je mange, and j'avais mangé. So to differentiate between passé and imparfait, this is just auxiliary that can help you. Otherwise, everything sounds Mm. same. Je mange and j'ai mange. And je mange. चलो मौजे को आपको एक सीखते हैं सारे टेंसेस में. Mm. What difference? So, मौजे. आपको तो पता है ना सारे टेंसेस क्या क्या है फ्रेंच में, राइट? सारे मोड्स पता है. subjunctive, conditional, हाँ? Right? Yeah. Even though we have not done that, but yeah, अभी पता होगा कि है क्या सारे forms. So start with Landikati. Also with compositive, compound tenses. ये दोनों बस देखो. Subjunctive और conditional अभी नहीं पढ़ा है. Imperative पढ़ाया है present, right? Mange, mange, no, mange. There's no Yeah. subject in here and it looks closer to present tense. Love reason. Just that you drop es में से is in case of ERN verbs. जैसे मॉन्स क्यू के साथ es होता है ना मॉन्स. Mhm. Mons, monsoon, monsoon. But now let's focus अभी के लिए here in this indicative tense, compound tense. तो वही मैं बोलता हूँ compound tense के साथ this और non compound indicative साथ W1 and pathway का some. Compound are पाथवे कंपोजिट प्लस पाथवे and equivalent. ये past tense area यूज नहीं होता, इसको हटा भूल जाओ. Okay, so present je mange and pathway je mange एंड फ्यूचर सॉन्ग भी छोड़ दो. अभी फ्यूचर सॉन्ग के पास इंटीरियर को मत पढ़ना, ठीक है? डोंट डू दैट. ये दोनों को छोड़ो, Okay. नहीं रिक्वायर्ड है. तो चाहो तो बाकी सॉन्ग देख भी सकते हो बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट. पास इंटीरियर तो बिल्कुल ही टच मत करना. देखो ब्लड किया हुआ है, वो किया अंदर डिड है बिकॉज इट्स नॉट यूज. Mm. सो je mange एंड je mangerai. Je mange, je mange, je mangerai. Mhm. What is the difference? Like I ate I ate or I in eat? park. I What je is difference? mange. Yeah. I eat. Okay. Uh. I was eating. I was imperfect. I was eating. Um. ये passes in. पासेज हम तो छोड़ दो, मैंने बोला Yeah. पासेज हम लोग पासे इंटीरियर भूल जाओ. Okay. Okay. I will be eating. Mangerai. I will be eating. So je mange, tu manges, je mangerai and je mangerai. There's no compound, there's no इतना हुआ, ठीक है? तो ये चीज तीनों तो याद हो जाएगा ऐसे लाइन से. Tu manges, tu Hmm. manges, tu mangeras. Il mange, elle mange, on mange. Let's keep one. Il mange, il mangeait, il mangera. Nous mangeons, nous mangiez, ils mangeront. Hmm. Nous mangeons means we eat. Nous mangions means we used to eat. And nous mangerons is we will eat. Vous mangez, vous mangiez, and vous mangerez. Vous mangez is you eat, you used to eat, manger, and Mhm. you mangerez. R sound. You will eat. Il mange, il mange, il mangeait, and ils mangeront. Il mange is they are eating, they were eating, and they will be eating. Right? They will eat. Mhm. Ils mangeront.
तरह से प्रैक्टिस करोगे सारे वर्ब्स के लिए, बहुत सारे जो Yeah. आपके, तो ये तीनों क्लियर। अब पास से कंपोज है, अब चाहो तो प्रेजेंट से भी कंपेयर कर सकते थे, इस तरह भी पढ़ सकते थे, जो मॉन्ज जे मॉन्जे, tu mange, tu Hmm. as mangé। अब ये आपका काम है, स्टूडेंट्स को समझना है कि उनको किस एंगल में गैप लग रहा है, या सारे एंगल्स की प्रैक्टिस करना। Il mange, il a mangé। Now it won't be no, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि you don't need to think what does it mean with il a mangé और il mange, दोनों में आराम से पता चल जाएगा, राइट। जैसे इंग्लिश हिंदी Hmm. में होता है ना, हमें याद ही है ना साउंड्स, कितना आराम से सोचते भी Yeah. नहीं है कि क्या बोला जा रहा है, वी जस्ट अंडरस्टैंड इट एंड Hmm. तो डायरेक्टली एज्यूम भी नहीं करते, मतलब एज्यूम क्या करना है, बस वी जस्ट गेट द साउंड, वी हियर इट एंड वी गेट द क्लिक द मीनिंग इज द सेंटर। और ना मौजे एंड देन ओके, nous mangeons and nous avons mangé, vous mangez, vous avez mangé, ils mangent, ils ont mangé, elles mangent, elles ont mangé। ठीक है, उसी तरह प्लस के पार्ट से जो अभी पढ़ाया आपको, इसको कंपेयर कर सकते हो पासे कंपोजिशन, इसी से कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए। So let's compare with passé composé. So j'ai mangé, j'avais mangé, tu as mangé, tu avais mangé, il a mangé, il avait mangé, nous avons mangé, nous avions mangé, vous avez mangé, vous aviez mangé, ils ont mangé, ils avaient mangé। ओके okay? Okay. अगर आप चाहो तो फ्यूचर इंटीरियर भी कंपेयर कर सकते हो। जे मॉन्जे, जावे मॉन्जे एंड जहे मॉन्जे, सब एक ही जैसा साउंड कर रहा है, सिर्फ ऑक्सिलरी चेंज हो रहा है, ठीक है। जे मॉन्जे, Yeah. जावे मॉन्जे एंड जहे मॉन्जे, तुआ मॉन्जे, तुआवे मॉन्जे एंड तुअहा मॉन्जे, il a mangé, il avait mangé and il aura mangé, nous avons mangé, nous avions mangé and nous aurons mangé, vous avez mangé, vous aviez mangé and vous aurez mangé, ils ont mangé, elles ont mangé, and ils ont mangé, ils avaient mangé and ils auront mangé। Hmm. That completes your future interior also। Future interior is basically it's something past in future, हो चुका रहेगा, it's more Okay. newer to the future sum। future sum हो गया far future, future interior हो गया थोड़ा Hmm. near future actually, not near actually but in between near and far future के बीच में जो है, that is future interior। it's something like कुछ हो चुका रहेगा, something will have finished in future। okay, that's future interior। Okay. Okay, so this part and future interior is the last indicative tenses that we have to deal with। after this we can move to the Hmm. subjunctive and conditionals। so I thought to start conditionals today but I'm not going to teach it today, कल से पढ़ते हैं conditional। conditional का बहुत Okay. सारा uses है ना, so I'll not teach you everything एक ही दिन में, I'll start with basics। why to use conditional, then like in which possibilities, like to be polite, add some polite expression, जैसे if I say je mange, it's very direct that I'm eating, right, I eat। Yeah. and if I say je mangerai in polite expression, it sounds like I would eat, समझ रहे हो? और I, right, it's polite, je mangerai। so polite expressions होता है ना, तो you use Hmm. conditional, also you use this conditional to say conditions, अगर ऐसा होता तो I would eat, je mangerai। so there are a lot of uses of conditional but at least we'll start with its uses of polite, in polite expressions। जैसे je voudrais, I would like to, je voudrais। जैसे जो मंजूरे है इसी तरह बुलवार को कंजुगेट करोगे ना, बुलवार इज टू Hmm. वांट, राइट। सो इफ यू से je veux, that becomes I want, but if I say je voudrais, that becomes I would like to, a little indirect and polite। that is Hmm. the conditional present। conditional present and past दोनों पढ़ना है। so, yeah, इसको बाद में करेंगे, कल करते हैं कंडीशनल स्टार्ट। अभी बताओ यूज के पार्ट पे तो ठीक है, समझ गए।
है ना? Yeah, I'll just have to revise once more. या आप कंपेयर करो, थोड़े बहुत एग्जांपल्स पढ़ो, कंपैरेटिव एग्जांपल्स, फिक्स पैकेट वर्सेस कंबाइंड विद वैसे कंपोजिंग क्लियर हो जाएगा। Mm, मुझे एक्सरसाइज देना है, इसमें मैं आप लोग को फिक्स पैकेट के लिए एक्सरसाइज दे रहा हूँ, वन नोट में ऐड है, ठीक है, okay. कर लेना। देखो समझ में तो नहीं आता ना, रूल्स तो पता है, बट to use them in real Mm, life, we need to do some exercise, practice. yeah. Actually, made up. See you next time in the next session with condition. जरूर ज्वाइन करिए, Okay. ठीक है? Bye. Bye. कल आई थिंक मेरा काम देर तक है तो आई एम नॉट श्योर। अच्छा, कल मैं कंडीशनल पढ़ाना चाह रहा था, ठीक है, मैं उसकी रिकॉर्डिंग फिर देख लूंगी। कोई बात नहीं। ओके और ज्वाइन करना। ओके बाय बाय।